Okay. Good morning to all of you. Uh, Hope I Good am morning, audible. ma'am. Good morning, ma'am. Uh, okay. So today we are going to discuss about different activities that develop the reading skills. Okay. So in yesterday's class we discussed about different strategies that enhance listening skills, and we also try to understand the importance of reading for students and in general, and we also discussed different types of reading. Okay, so where I explained types of reading, styles of reading, and techniques for reading. Okay, so today we are discussing the last point in the reading skill, that is developing different activities to develop reading activities, or they may ask what are the different reading activities to enhance reading skill. For every one of them, the answer is same. Okay, now I am starting the presentation. Yeah. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. One minute. Okay. So, um, developing reading abilities also, I want to discuss with reference to students who are really need the reading habits to understand the content, to develop knowledge about the content, and in general, reading is a general leisure activity or something. It is a professional activities also. So after completion of studies, how as a person we should continue with the habit of the reading, that is also more important. Okay, so now we are going to discuss about developing the reading abilities for students, then we will go to the idea of developing reading in general, what kind of measures, what kind of activities we can um, involve in. Okay, as for students, because for students they have to read a lot of content, so even though loud reading sometimes, and most of the time silent reading, in order to prepare notes, to answer questions in the exam, to face viva voce, to face interviews, even job interviews. So for many purpose, a student needs to read the content for comprehension, for understanding. So how to make our reading successful? Okay, what kind of activities we need to do? Because if you read once, it is not enough. Once you read and you just get an gist or idea, so then again you have to read and understand and underline or identify the important points, then you have to further enhance the knowledge about those important points. Okay, even if you are going through a book with 50 pages, maybe 10 pages are highly important to you, or information related to or amounting to 10 pages may be important to you. So how to identify that, how to read that material again and again, how to develop notes using that. So there are different activities. Okay, so the first one is annotate and highlight text. Okay, so you have a highlighting pen, or you have a pencil with you, pen with you, so you can highlight the text. हाइलाइटर पेन से उसको पूरा फ्लोरेसेंट इंक से होता है, so you can clearly use the fluorescent ink to highlight the text. Or annotate, annotate means you write, so you develop some idea about it, so you quote that lines and develop your notes. Okay, वहाँ आप कुछ मार्कर्स दे सकते हैं, समथिंग सम एग्जाम्पल मे बी स्ट्राइकन टू यू, तो आप उसको एनोटेट भी कर सकते हो. मतलब एनोटेशन मीन्स
एक सिंपल एग्जाम्पल आपको लैंग्वेज में आया होगा, संदर्भ वाक्य बोलते हैं। एग्जाम्स में 10th में 12th में लैंग्वेज में पर्टिकुलरली आता है आपकी किसी टेक्स्ट बुक में कुछ लेसन है, वहाँ कुछ डायलॉग्स के बारे में, अदरवाइज सम कोट, इंपॉर्टेंट कोट में बी देयर विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड रिलेटेड टू अदर कंटेंट। तो वहाँ why this quote is specially dealt in that particular thing, or who said the dialogue to whom, ऐसा पूरा एनोटेशन किस संदर्भ में ये वाक्य को उपयोग किया है, क्यों किया है, ऐसा एनोटेशन करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसा कुछ आया हो तो आपको पता है तो यू कैन इवन आस्क योर स्टूडेंट टू दैट। आपकी टीचर आपको बोला होगा ये सेंटेंस आप अंडरलाइन करो, ये एग्जाम में आपको पूछते हैं, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन डिटेल, क्यों ऐसा बोला गया है, इट हैज सम इम्पोर्टेंस रिलेटेड टू योर लर्निंग, सो यू हैव टू develop that annotation. So as a teacher you have to identify such kind of sentences, dialogues which are of importance and make your student underline them. Otherwise जो भी important text है जिसके बारे में भी स्टूडेंट को फर्दर रीडिंग की ज़रूरत है, फर्दर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, उस संदर्भ में भी हम उसको हाईलाइट करने के लिए बोल सकते हैं। देन पर्सनलाइज द कंटेंट। Personalize the content means when you are explaining the content, when you are try to develop a real life comprehension, you try to relate it to present context, because student is living in the present and the content may be taken from very long back years. We have scriptures to study. रामायण की कथा आती है, भारत की कथा आती है, बाइबल में कुछ कहानी आया होगा, राजाओं का कहानी आया होगा। So in order to develop that understanding, relate the situation to present situation. So 9th standard में आपके लिए नमक का दरोगा, हिंदी मीडियम में अगर आप देखें तो हिंदी मीडियम का टेक्स्ट बुक, I think 11th not 9th, in 11th standard Hindi textbook of NCERT we find a lesson by Munshi Premchand, Namak Ka Daroga. So that lesson is completely explaining the corruption that is prevailed during British Raj. अभी यहाँ बैठ के यहाँ करप्शन वो सब देख के हम सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स का जमाना अच्छा है, उस समय कुछ नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन when you go through the literature यहाँ ऐसा एक कहानी आपको मिलती है कि जहाँ एक नमक तैयारी करने के लिए कुछ नमक के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ किया कि वहाँ जैसा हम होर्डिंग करते हैं, अभी देखो ऑनियन का प्राइस बढ़ते हैं उसका होर्डिंग हो जाता है, तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग थिंग है। तो इफ यू रिलेट दैट थिंग टू करप्शन, प्रेजेंट वी आर विजुअलाइजिंग इन दी ऑफिसेस, everywhere we are witnessing that. ओके सो आप उसके लिए रिलेट करो। अदरवाइज कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, विवाह के बारे में कहीं आया तो स्टूडेंट की घर में कहीं विवाह हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो उसके लिए हम रिलेट करने से बच्चा उसको अच्छा याद रखते हैं। दे डेवलप द इंटरेस्ट टू रीड फर्दर। ओके, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। From your side you give a problem and ask students to discuss the problem and write solutions. Okay, they discuss the problem and note down the different aspects of the problem, and then they also try to identify some solutions to the problem. This could be also a way to develop reading ability. In order to identify solutions, they are going to read different books, or they discuss and even try to go referencing reference books, so they internet sites, so they read something to come out with the solutions. Incorporate more senses. यहाँ senses मतलब because learning styles are different for students. Okay, so some need if I speak more, some people understand if I speak the content, I explain the content. Some people understand if I provide a material and then explain. Some people need some activity. So you have to, according to the nature of the content and nature of your student population, you have to involve different activities in the reading class. So your students get motivated and they try to read content. If they are interested in loud reading,
some people want to learn through listening, so you encourage loud reading. तो जिसको भी ऐसे सुन के सीखना है ऐसे सीखेंगे. अदरवाइज फॉर दोज हु वांट टू रीड साइलेंटली, प्रोवाइड द मटेरियल. For those who want to see pictures, you provide some annotated material with pictures, a video with pictures and audio. So you have to provide different kind of materials in order to develop that reading habit in your students. That is the thing. Incorporate more senses means make your student use more than one sense to अंडरस्टैंड दी कंटेंट. खाली रीडिंग नहीं, साइलेंट रीडिंग नहीं, उसके साथ टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट के साथ पिक्चर्स रखो. तो पिक्चर को भी हमको रीड करना है ना. रीडिंग का ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. कल मैं डिस्कस करना भूल गई. रीडिंग साइलेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. रीडिंग इज not only reading involves not only text, it involves pictures and even graphs. बहुत सारे चीजों से. एक पिक्चर भी सामने रखे आपको, इसके बारे में लिखो, मतलब यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पिक्चर, तभी आपको उसके बारे में कुछ लिख पाते हो ना. क्या है, एटलीस्ट वी नीड टू डिस्क्राइब द पिक्चर. ओके, सो हियर आई एम इन्वॉल्विंग द विजुअल एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ द स्टूडेंट, क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट. बहुत सारे सेंसेस मैं यूज करके उसको उससे पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ. तो सेंसेस मीन्स यू हैव टू मेक योर स्टूडेंट्स यूज मोर देन वन सेंस. खाली मैं देख के ही नहीं पढ़ रही हूँ, बोल के ही नहीं पढ़ रही हूँ, पर दूसरा काम भी, पिक्चर को रीड कर रही हूँ, एक ग्राफ को रीड कर रही हूँ, एक टेबल जिसमें फिगर्स दिया हुआ है उसको भी रीड करके हम नीचे कुछ टेक्स्ट डेवलप कर सकते हैं. ठीक है. सो वी नीड टू make our students use multiple senses in order to carry on the reading activity. Then understand common themes. And so you also, while giving the reading activity, you ask your students understand the common things that are present inside the content. एक content में हो सकता है, otherwise you might be giving, you take 4 to 5 contents with the same theme or related theme. Okay, and then you distribute among your students. So students को भी groups बनाओ और उसके बीच में ये बांट दो. and then you ask them to discuss कि इसका common theme क्या है. मैंने ऐसा आपको 4-5 different reading text दिया है, लेकिन उसका common theme क्या है ये मुझे आपसे डिस्कस करवाना है. तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स उसको केयरफुली पढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना है, क्या करना है समझ नहीं आता है. बट एज ए टीचर यू नीड टू डेवलप दीज रीडिंग हैबिट्स विद दीज इंटेंशनल एक्टिविटीज. ऐसा आपको लेना है. सेट रीडिंग गोल्स. स्टूडेंट डेवलप देयर स्किल्स विद सेल्फ कंट्रोल एंड मोटिवेशन. तो स्टूडेंट्स को आप रीडिंग गोल्स रखो, स्पेशली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ तक. कहीं कहीं स्कूल्स में आप जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इन द एनुअल डे गुड रीडर ऐसा एक अवार्ड मिलता है. एक बुक मिलेगा, समथिंग सम मुझे रिवॉर्ड मिलेगा. ऐसे भी बच्चे अपने आप रीडिंग गोल सेट करते हैं. क्लास में टीचर को ऑब्जर्व करना है कि लाइब्रेरी से बुक्स लेना है, पढ़ के वापस करना है. जो बुक लिया उसका एक रिपोर्ट बना के टीचर को सबमिट करना है. ऐसे भी एक्सरसाइजेस स्कूल्स में छोटे बच्चों को एटलीस्ट अप टू 6th स्टैंडर्ड ये होता है. सो एवरी ईयर फ्रॉम 1 स्टैंडर्ड 3rd की 5 सेक्शंस होगा. उसमें से एक लड़का या लड़की या एक बच्चा या लड़कियों में एक, लड़कों में एक, ऐसा एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करके बेस्ट रीडर का अवार्ड भी देते हैं. सो दिस डेवलप्स दैट रीडिंग गोल्स, सेटिंग द रीडिंग गोल्स, जो आगे जाके आप खुद ये थीम पे चाहिए, ये कंटेंट पे चाहिए, ये विषय पे चाहिए, ये राइटर का मुझे पढ़ना है, ऐसा खुद आप एक रीडिंग गोल्स रखें, अपना लेवल आप इम्प्रूव करते हैं. सो आप एज ए टीचर इफ यू सेट द रीडिंग गोल्स, दे डेवलप द रीडिंग हैबिट विथ सेल्फ कंट्रोल एंड मोटिवेशन, बिकॉज ये खत्म होने के बाद उसको कुछ प्राइज मिलने वाला है. ओके, यू हैव टू आफ्टर रीडिंग दिस यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट, जो इवेल्युएशन में आएगा, कुछ ग्रेड मिलेगा, मार्क्स मिलेगा. तो ऐसा हमको वो रीडिंग गोल्स भी सेट करना है. रीड इन पोर्शंस.
मेनली कोई भी टेक्स्ट है बच्चे एक ही स्पीड से नहीं पढ़ सकता है. समथिंग मे बी अबव देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल. सम कंटेंट मे बी इन्वॉल्विंग डिफिकल्ट टेक्स्ट, स्पेशली ओल्ड इंग्लिश या पुराना हिंदी को आप देखो, कोई भी लैंग्वेज की older versions, ancient versions are going to be very difficult to understand because that language is not spoken in the present time. तो उसके लिए बच्चों को क्या है कि पोर्शंस में हमको देना है. एक ही टाइम आपने पूरा बुक दे दिया, बच्चे डर के पढ़ना ही बंद करेगा. बट वी नीड टू कंटिन्यू दैट एक्टिविटी बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द पोर्शन in the syllabus, so there is no taking away that portion. You have to teach that. So you provide that reading in small portion. You divide the content in meaningful parts and provide the exposure to the reading in portions. छोटा छोटा वो पढ़ेगा, धीरे धीरे वो उसको समझने लगा, वही कंटेंट पॉइंट्स या वोकैबुलरी रिपीट होता रहता है, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ेगा बिकॉज ही कैन कॉम्प्रहेंड. तो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ेगा, ऐसा उसका हमको रीडिंग कंप्लीट करवाना है. सो इफ द रीडिंग टेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स और कंटेनिंग ए लैंग्वेज विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू द present living conditions, then we have to supply it in portions. Let students guide their reading. Okay, so here also you need to provide reading text according to the ability of the students. ओके, बहुत अच्छा स्लो लर्नर होगा, उसके लिए थोड़ा सिंपल वाला, पिक्चर्स से ज़्यादा रहने वाला ऐसा कंटेंट दे दो. एक्सेलेंट रीडर, प्रोवाइड देम द डिफिकल्ट टाइप ऑफ रीडिंग टेक्स्ट टू स्लो देयर रीडिंग एंड बी अलोंग विद द ग्रुप. ओके, तो ऐसा यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू गिव डिफरेंट एक्टिविटीज. बिकॉज रीडिंग एक्टिविटी क्या है कि all the time it is not only related with the textbook, you can develop it further with so many non detailed text. हमकी non detailed text भी पढ़ाने की कुछ ज़रूरत होती है, evaluation की ज़रूरत होती है. So there you can divide. difficult section अच्छे students को दे दो, simple section थोड़ा slow learners को दे दो, average students group को average section दे दो. आप पढ़ के आओ, इसको हम discuss करेंगे. Okay, so you have to look into the level of the students, you have to develop these activities. Okay, so again I am repeating. So to develop reading abilities in the students, what kind of activities? Annotate and highlight the text, that is important. Personalize the content, always relate the content to the living examples, living experiences of the students. Practice problem solving skills. In order to develop reading ability, you ask students to, you provide a problem and ask students to bring out the solutions for which they are reading. Incorporate more senses. Always try to involve more than one sense in the reading activity. Understand common themes. You bring in a text following a common theme and then you discuss so that students learn more. Set reading goals and read in portion. In order to make students understand complex materials, you read in portions. Let students guide their reading. Okay, so according to the level of the students, you have to provide the reading material. Okay, same reading material. You may be confused, मैडम एक ही लेसन है, उसको कैसे मैं समझाऊं. सी स्लो लर्नर है, उसके लिए एक सिंपल सा वर्जन आजकल हमको, अभी लैंग्वेज टीचर्स आप देखो तो इंटरनेट पे पूरा लैंग्वेज लेसन से भरा पड़ा है. तो जो स्लो लर्नर है उसको पिक्चर्स के साथ एक एनिमेटेड वर्जन तो ज़रूर मिलेगा, वो दे दो. एवरेज स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक दे दो. एंड देन एक्सेलेंट स्टूडेंट्स के लिए एग्जैक्ट प्रेमचंद की कहानी है, वो नावल पढ़ के आने के लिए बोलो, विच इज़ लॉन्ग लार्जर इन वॉल्यूम, उसको पढ़ने में टाइम भी लगता है. तो everyone comes to a level to understand the text. Okay, so these are the 8 measures to develop reading abilities in the students. As a teacher, because आप student teachers हो, आगे जाके teachers बनने वाले हो, so for you these things are important. Okay, so now we are moving into the reading in general. Okay, reading खाली जब तक आप पढ़ रहे हो वही तक सीमित है, ऐसा नहीं है. इवन इफ यू एंटर ए जॉब और प्रोफेशनल लाइफ, इवन फैमिली लाइफ,
देर आल्सो यू नीड मोर रीडिंग, क्योंकि आगे जाके आपके बच्चे होंगे, आपकी जॉब में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी आपको बहुत सारे चीज पढ़ने की जरूरत है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग यू नीड टू डेवलप प्रोडक्टिव रीडिंग एबिलिटीज। आप में रीडिंग जिंदगी भर आपका कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ एज ए स्टूडेंट आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए फर्दर रीडिंग के लिए हुआ, बट वंस यू गेट इन टू दी एम्प्लॉयमेंट यू नीड टू मूव फर्दर। आपको अपने एम्प्लॉयमेंट में क्लर्क जैसा एंट्री किया तो ऐसे ही रहना नहीं, यू नीड टू मूव फर्दर। तो उसके लिए भी आपको आगे जाके कुछ रीडिंग करके ही सीखना है। सो हियर इट इज सेल्फ रीडिंग, आपको कोई बताएगा नहीं, क्लासरूम में बैठ के टीचर नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, आप जितना अपने आप को एक्सपोज करते हो उतना अच्छा रीडिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट आर दी डिफरेंट वेज टू डेवलप प्रोडक्टिव रीडिंग, रीडिंग टिल द एंड ऑफ लाइफ, आप ऐसे ही समझो इसको। ओके, डिटरमाइन योर रीडिंग पर्पस। तो आपका रीडिंग पर्पस क्या है, किस तरह की टेक्स्ट को रीड करना है। सो इफ योर पर्पस इज लेजर, सो you try to read anything that provides you some kind of relief। कोई नॉवेल पढ़ो, कोई मैगजीन्स पढ़ो, ऐसे टेक्स्ट ले लो। इफ योर पर्पस इज लर्निंग, यू वांट टू लर्न व्हाट अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट ऑफ लर्निंग, यू चूज बुक्स एंड रीड। तो पहले आपको अपना गोल क्लियर होना है, पर्पस क्लियर होना है। लीजर के लिए है तो आप कुछ भी, कोई भी नॉवेल पढ़ सकती हो, कोई भी मैगजीन पढ़ सकती हो, कुछ भी सिंपल थिंग्स, न्यूज़पेपर से भी पढ़ के सुन सकते हो। बट इफ गोल इज लर्निंग, आपको आपकी जॉब में आगे जाना है तो उसकी आपकी जॉब की रिलेटेड बुक्स लेके आपको पढ़ना है। बुक्स मतलब हियर नॉट ओनली बुक्स, इंटरनेट साइट्स जो भी है, जहाँ से भी इसकी रिलेटेड कंटेंट लेके पढ़ना है। मेक नोट्स इन दी बुक, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप जब पढ़ रहे हो तभी आपको आइडिया आया, तो एवरी बुक, हर एक बुक का मार्जिन होता है ना, चारों साइड होता है। सो द मार्जिन इन द लेफ्ट इज यूज्ड टू मेक द बाइंडिंग ऑफ द बुक, बट तीनों साइड जो मार्जिन है, स्पेशली राइट साइड जो मार्जिन है, वहां हम अपना नोट्स बना सकते हैं। बट दैट नोट्स मस्ट बी मेड इन योर ओन बुक। किसी ने किसी का बुक दिया तो उसमें आप लिख नहीं सकते हो, बिकॉज यू हैव some emotions attached with the book। वो बुक आपको कोई कहीं प्रेज में मिला होगा, कुछ ऐसा होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे जब मैं डिग्री कर रही थी, मुझे एक अच्छा सा तेलुगु में एक फेमस राइटर का नॉवेल प्रेज में मिला है, हमको फर्स्ट आया है वो। वी यूज टू हैव एवरी सब्जेक्ट में जिसका हाईएस्ट मार्क्स है उसको कुछ प्रेज मिलती थी, तो उसके लिए मुझे वो बुक मिला, अच्छा सा बुक। एंड इट इज ए story related to a raja who is following the Saiva sect। तो उसमें पूरा बहुत सारा शिव जी के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है। सो मेरे अंकल बाजू में रहते थे, उन्होंने बोल दिया मैं एक बार देख के लेता हूँ। लेके उन्होंने क्या किया, जहाँ भी वो शिव का भक्त है, जहाँ भी शिव का आया उन्होंने ही स्टार्टेड अंडरलाइनिंग। तो कुछ देर करने के बाद उसको याद आया कि वो उसका बुक नहीं है, मेरा। तो तब तक आधा बुक तो उन्होंने अपना कुछ कमेंट लिख दिया, नहीं तो नमस्कार ऐसा ये कर दिया। पूरा बुक को मुझे तो वो प्राइज में मिला है, किसी को दिखाना है। आई फील सो प्राउड ऑफ इट कि मुझे फर्स्ट मिला है। तो इसलिए ऐसा मेक नोट्स इन दी बुक। तो वो देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आता था। कुछ दिन के बाद अब वो अंकल भी नहीं, तो अब वो बुक खोलती हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। इट्स ओके, उसका राइटिंग अभी मैं देख तक सकती हूँ, दैट इट हैज। बट लाइब्रेरी से भी आप इश्यूज बुक्स इश्यू करवा सकते हो। सो ट्राई टू मेक नोट्स इन योर ओन बुक, अदरवाइज लाइब्रेरी की कॉपीज लेके उसको आप ऐसा कहीं भी आप कमेंट्स लिखे हो, कुछ लिखा हो तो आपको फाइन होता है, क्योंकि वो लाइब्रेरी का बुक है। ठीक है, लेकिन मेक नोट्स, नोट्स लिखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो नोट्स देखते ही आपको सब कुछ याद आएगा, क्योंकि आप कुछ पर्पस के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम रिलेटेड, और कुछ पढ़ना है, कुछ रिफर करना है, वो सब चीज आपको याद आएगा। यूज दी स्वार्म स्ट्रैटेजी टू गो डीप विद इन यूर रीडिंग। स्वार्म स्ट्रैटेजी, बहुत सारे ऐसे रीडिंग की टेक्निक्स स्ट्रैटेजीज होते हैं। What is it? When you identify a particular topic which is of interest to you, तो एक बुक में उसके बारे में थोड़ा ही लिखा होता है। Every book need not give you the overall concept about a topic.
So you identify the topic of interest to you in one book, and then you go on referring different books or sites in order to develop in order to develop a brief, or in order to develop the concept from multiple एंगल्स. बहुत सारे लोगों ने एक ही कॉन्सेप्ट, प्रेजिंग के बारे में, कॉस्ट एंड प्रेज, ऐसा कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में आपको चाहिए. So it is economics related. What economist is saying is one way. What a normal buyer is saying. What a normal producer is saying. So everyone has a different ideology regarding the pricing or cost of a particular item. तो आपको तीनों की राय जब समझते हो, आपको exactly समझ में आता है कि इतना प्राइस बढ़ा है तो how it is affecting the society. Okay, so this is swarm strategy. हम एक कहीं कंटेंट पकड़ रहे हैं, उसको बहुत सारे रेफरेंसेस से हम उसको बढ़ा रहे हैं. स्नोबॉलिंग. रीड अबाउट द ऑथर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑथर के बारे में जितना आपको कॉन्फिडेंस होती है, इतना कॉन्फिडेंस हम उस बुक में लिखा हुआ मटेरियल के ऊपर भी आता है, वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट. वो ऑथर किस चीज़ों के बारे में ज़्यादा लिखते हैं, ये इसके बारे में एक ही बार लिखा तो थोड़ा डाउटफुल हो सकता है. अगर आधर उसी फील्ड में है, इकोनॉमिक्स के बारे में लिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स फील्ड से ही है, सो देन दैट इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक. ठीक है, तो आथर के बारे में भी पढ़ के, अगर उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट के बारे में और भी दूसरी बुक्स लिखे, वो भी हम पढ़ सकते हैं. सो बाय नोइंग अबाउट द आथर we are automatically going to enhance our content also. इधर उधर ज़्यादा देर ढूंढना नहीं, हमको easily दूसरा बुक भी मिल रही है. ठीक है, वो आथर और किसी आथर के साथ जोड़ के लिखा है, तो वो दूसरी आथर की इंडिविजुअल बुक भी हो सकती है. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू नो अबाउट दी आथर. मतलब आप लीजर पर्पस के लिए भी पढ़ रहे हो, वो आथर का नॉवेल अच्छा लगा, उसका और भी अच्छा नॉवेल्स है तो हम पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो आथर के बारे में जानना भी वन ऑफ द प्रोडक्टिव रीडिंग एक्टिविटीज. राइट अबाउट व्हाट यू रीड. सो यू मेक इट ए हैबिट कि आपने जो पढ़ा उसके बारे में एक समरी लिखो, रिपोर्ट लिखो. सो आपको आपने जो पढ़ा वो बहुत देर आपको याद रहता है. अदरवाइज वो समरी देख के आपको समझ में आता है कि ये कब पढ़ा मैंने, वो सब सीन आपको याद आती है, कहाँ से वो बुक लेके आया, कहाँ वो बुक रखी थी, उसमें क्या है. So you remember it within no time. Discuss your reading with other people. Always this is a better thing. आपके जैसा reading interest है, ऐसे ये क्लब या ग्रुप से अपने आप को जोड़ो एंड यू स्टार्ट डिस्कसिंग. डिस्कशन में वो लोग आपको कुछ नई बात बोल सकते हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी है ऐसा वो सोच नहीं रहे हैं. So they are going to add some new angle to your understanding. Okay, ask yourself, do I agree with the author, why or why not. So always try to do that self evaluation ki whether this the book the content in the book is agreeable to me or not. If yes, why, if no, why. तो इससे क्या है कि आपका खुद का थिंकिंग स्किल भी बढ़ता है. Okay, explore the content of your reading means every book has so many sections. in the first page में इसमें content पेज होता है, कहाँ कहाँ क्या है. otherwise the writer is expressing their gratitude, thanks बोलते हैं. ये सब चीज लोगों के लिए मैं ये बुक डेवलप करने में मुझे सहाय किया है, अदरवाइज मुझे डिस्टर्ब नहीं किया है. ऐसा बहुत सारे लोगों को वो थैंक्स बोलते हैं. बुक की एक प्रीफेस होती है, व्हाई दिस बुक इज रिटन. ओके, सम अदर पीपल में भी राइटिंग देयर आइडिया, वो भी वहाँ होता है, बाद में बुक शुरू होता है. ठीक है, विद इन दी पेज ऑल्सो देर इज फुट नोट, एंड नोट, फुट नोट्स ऐसा होता है. कहीं कहीं बुक में ऐसे कंटेंट आया जो अभी प्रेजेंट रीडर को पता नहीं, तो एक एस्ट्रिक मार्क, ओके, स्लैश ऐसा रखे, उसके बारे में नीचे उसका विवरण दिया होता है. तो ये सब चीज जनरली क्या है कि व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द बुक वी जनरली टेंड टू नेग्लेक्ट. क्या पढ़ना है हमको, कहानी ज्यादा चाहिए. बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट विथ क्लियर, विथ क्लैरिटी, विथ क्लियर सेंस, क्यों ऐसा रखा है, एक डाउट तो होगा. सो यू हैव टू क्लियर दैट डाउट बाय एक्सप्लोरिंग ऑल दीज कंटेंट्स. एक्नॉलेजमेंट किसको दिया, फुट नोट्स में क्या क्या लिखे हैं, पीछे ग्लॉसरी में क्या लिखे हैं,
किसके बारे में क्या बोला, राइटर कितना स्ट्रगल किया ये बुक डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो इतने लोगों को थैंक्स बोल रहा है, कंटेंट क्या क्या रखे हैं। ठीक है, उससे क्या है कि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आता है कि वो लिटरेचर, वो पीस ऑफ लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ, उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, इन सबसे आपका नॉलेज भी बढ़ता है, राइटर के बारे में भी पता चला, उन्होंने क्या किया वो भी पता चला। ठीक है, तो यू नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बहुत सारे कंटेंट है, फर्दर पीछे रेफरेंसेस दिया है। ठीक है, कुछ आर्टिकल है, मैंने ऐसे रीडिंग स्किल पे एक आर्टिकल लिखा है, वो रेफरेंसेस हम पढ़ते नहीं, रेफरेंसेस पढ़ने से और थोड़ा रीडिंग मटेरियल मिला है विच इज एनहांसिंग माय नॉलेज फर्दर। तो इसलिए हमको ये सेक्शंस को ध्यान से देखना है। ठीक है, देन फाइल आइडियाज एट ए कॉमन इन ए कॉमन प्लेस बुक। ये जनरली अभी भी इतना आपको इंटरनेट इन सब में नॉर्मस मिल रहे हैं, तो ये आइडिया पुराना जमाना में है, जहाँ बुक्स आर वेरी रेयर, बुक्स बहुत कॉस्टली है, हम नहीं ले पाते हैं। अभी भी आप एज ए स्टूडेंट बाहर जाओ तो कहीं कहीं कार्नर में बुक लेंडिंग शॉप होता है, उन्होंने 4 महीने आप रखो लेकिन मेरे लिए 300 पे करो। ठीक है, आप पहले ही दिया, वो थोड़ा पैसा वापस करता है। सो इन दैट प्लेस क्या है कि 15 दिन में, लाइब्रेरी में भी दिया तो 15 दिन में वापस करना है। सो हाउ टू रिमेम्बर दी थिंग्स, तो आप एक कॉमन बुक रखे, उसमें आप आपकी आइडिया सब उसमें लिखते हो, तो फिर एक बार बुक को वापस दिया तो भी वो आइडियाज एक बार पढ़ने से आपको पूरा कंटेंट याद आ जाता है। तो इसलिए आपकी आइडियाज भी लिखा तो आपने जो रीड किया वो कंटेंट आपको याद रहता है, फर्दर आप रीडिंग कर सकते हो। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू एंजॉयड इन लीजर रीडिंग, ऑलवेज ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन योर रीडिंग। मोस्टली आप इवन लीजर के लिए भी, एंजॉयमेंट के लिए भी आपने कुछ किया है तो किसी से डिस्कस करो, मुझे ये बुक क्यों अच्छा लगा, इतना एंजॉयमेंट मिला है, ऐसा हम बोलते हैं जनरली आपकी फ्रेंड्स या आपकी सिबलिंग्स, मम्मी पापा से भी। कहीं हम चाय पीते बैठे हैं तो आज मैंने ये बुक पढ़ा, उसमें ये मुझे अच्छा लगा, सिनेमा के बारे में भी डिस्कस करता है ना, तो आपको रिफ्लेक्ट करना है, इसमें मुझे ऐसा लगा, वो क्यों ऐसा लिखा है पता नहीं। सो इफ योर पेरेंट्स नो, फ्रेंड्स नो फर्दर अबाउट दैट, दे मे गिव यू क्लू। रीड रिव्यूज अबाउट योर रीडिंग, कभी ये दिस इज द बेटर आइडिया, पर्टिकुलरली लिटरेचर के बारे में क्या है कि until and unless we read the reviews we are not in a position to understand the value of that particular literary work। तो उसके बारे में, वो बुक के बारे में, नॉवेल के बारे में कोई भी कुछ लिखा है, रिव्यूज क्या आया है, उसको पहले पढ़ के बाद में बुक पकड़ लिया तो वी गेट ए द एंजॉयमेंट एट द प्रॉपर लेवल। हमारा आइडिया भी उस लिटरेरी वर्क के बारे में हाई हो गया है, या हम अच्छा सोच रहे हैं, एक्चुअली दैट इज ए स्लैंडर। ठीक है, वो अच्छा बुक नहीं है, क्रिटिक्स ऐसे बोल रहे हैं। सो यू नो द एक्चुअल फैक्ट्स अबाउट द बुक एंड देन यू कैन read the book. Even after knowing that also, if you want to read, you can read the book. Okay, then मतलब उसमें exactly अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये भी पता चलता है। ऐसी एरिया में राइटर ने ये चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन और उन्होंने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है, ऐसा उसका सब एवरी न्यूएंस इज प्रेजेंटेड इन द रिव्यू। तो उसकी वजह से हमको भी वो सब एक बार पढ़ के, हम पढ़ने से हमको मजा आता है, अच्छा इतना अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया, बिकॉज यू डेवलप दैट रेस्पेक्ट। डेवलप माइंड रीडिंग पावर्स बाय रीडिंग फिक्शन, to develop a theory of mind for other people to understand people better. Mind reading powers, so when you are reading the fiction books or you are reading even non-fiction also, someone has written an article about a particular issue like reservation, so in between line what this author is really intending to say, so you have to think about that. Develop mind reading मतलब mind reading of the राइटर, आपका माइंड रीडिंग नहीं, हम उसका सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, उसका एक्चुअली इनर फ्लो क्या है, व्हाट दे हैव रिटन, ये हमको समझना है, समझ में आए। सो इससे क्या है कि हम दूसरे लोगों को अच्छी तरह समझ पाते हैं, वेदर दे आर स्ट्राइट फॉरवर्ड, थोड़ा कन्निंग है, और बाहर बोलते एक है, एक्चुअली
लिखते एक है लेकिन उसकी अंदर की सोच अलग है, ये सब हमको देखने में मिलता है। अदरवाइज इन ए हिडन वे आर देयर एक्सप्लेनिंग द थिंग। ओके, यूज एड्स टू ऑगमेंट योर रीडिंग। ऑगमेंट मीन्स स्पीड अप। तो जहां आपको एक वर्ड समझ में नहीं आया, नेवर गो फर्दर, आप वहां स्टॉप हो जाओ। वो वर्ड का मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा यूज किया, वंस यू क्लियर दैट डाउट, आपका रीडिंग स्पीड बढ़ता है। तो क्यों अभी ये सब ये करने का, मुझे आगे पढ़ना है, नोट्स तैयार करना है, यहाँ आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आगे आपका रिफ्लेक्शन या अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज द डिक्शनरी। कहीं प्लेस के बारे में डिस्क्रिप्शन है तो गूगल मैप से वो प्लेस कहाँ है वो देख के, तो आजकल आपको विविड डिस्क्रिप्शन भी मिलता है, तो उससे आपको, आप जो पढ़ रहे हो, अच्छी तरह समझ में भी आता है। ओके, यूज ए हाईलाइटर। तो पढ़ने के बाद, एक दो पेजेस पढ़ने के बाद आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, तब आपको फिर पूरा पढ़ना पड़ता है। तो जहां जहां पॉइंट्स आपको नोट में इंक्लूड करना है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करो, बाद में आपका नोट्स प्रिपेयर करो। ओके, पर हाईलाइटिंग भी शुरू किया मतलब पेज की पहली लाइन से एंड लाइन तक ऐसा नहीं करना है। यू नीड टू बी थॉटफुल, ध्यान से करना है। बहुत जरूरी है उन्हीं चीजों को करना है क्योंकि उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है। क्रिएट ए स्टडी नोट्स। ओके, जनरली आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ है, उसके लिए आप पढ़ रहे हो, बारी बारी पूरा बुक आप पढ़ नहीं सकते हो, तो जब पढ़ते पढ़ते आपने अपना नोट्स तैयार किया तो बाद में वो नोट्स पढ़ के आप अपना एग्जाम फेस कर सकते हो। रीड एवरी डे। तो रीडिंग एक बार किया, आज मैंने रीडिंग किया तो फिर मैंने 10-15 दिन या महीनों बाद फिर बुक पकड़ा, ऐसा नहीं। ट्राई टू रीड एवरी डे। थोड़ा थोड़ा एक टाइम आप फिक्स करके, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, आपको कंटिन्यूअसली रीड करना है। उससे क्या है कि आपका रीडिंग हैबिट भी डेवलप होती है और आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होता है, स्ट्रेस रिलीव होती है, यू आर एंगेज्ड इन ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो आप अपने आप को खुश मानते हो, या आपको वो स्ट्रेस रिलीज होगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सो दीज आर दी 16 स्किल्स, वी कैन से, ये भी स्किल्स बोल सकते हैं। एक बार रिपीट करती हूँ। डिटरमाइन योर रीडिंग पर्पस, वेदर यू आर रीडिंग फॉर लेजर और लर्निंग। मेक नोट्स इन द बुक, साइड में जो स्पेस है उसमें आप नोट्स बना सकते हो। यूज द स्वार्म स्ट्रेटेजी, रीड अबाउट द ऑथर, write about what you read, discuss your reading with other people, ask yourself whether you are satisfied or not, explore the content of your reading, whatever references, everything that is related to text you have to go through, from starting from content page to glossary. Then file ideas in a commonplace book. एक कॉमन नोटबुक रखे, उसमें आपने जो पढ़ लिया, उसमें जो आइडिया आपको अच्छा लगा उसके बारे में लिखो। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू एंजॉयड इन लीजर रीडिंग, आपको क्या अच्छा लगा वो टेक्स्ट में, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करो। रीड रिव्यूज, रिव्यूज पढ़ के आप बुक के बारे में एक फेयर आइडिया डेवलप करो। डेवलप माइंड रीडिंग, माइंड रीडिंग ऑफ द राइटर, वो क्या बोलना चाहते हैं एग्जैक्टली, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। आपको कहीं भी समझ में नहीं आए तो ट्राई टू कीप वन डिक्शनरी और अदर एड्स इन ऑर्डर टू develop clarity about the content of the book. Use a highlighter, create a study notes, and finally you have to read every day. You have to read every day. Okay, so now I am stopping the sharing. Okay, 1 minute. Yes. Okay, so with this we have completed the portion in language across curriculum. Okay, 5 units आपके लिए खत्म हुआ है ना। LSRW skills में मैंने लिसनिंग एंड रीडिंग किया, और भाविन सर ने स्पीकिंग एंड राइटिंग किया, है ना। Okay, the whatever things that are associated with this syllabus we have completed discussing this. Okay, so if you want to ask anything related to this you can ask. कुछ डाउट्स है इसके बारे में? हेलो
नो मैम। ये कल का और आज का मैं थोड़ी देर में आपको भेजती हूँ ये मटेरियल। ओके, आपके एग्जाम्स के टाइम टेबल वो सब आपको पता है। 2 मार्च से एग्जाम्स है ऐसा बोल रहे थे मैडम मुझे, सुजाता मैडम। यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। सो एक्चुअली सैटरडे क्लास है, लेकिन उस टाइम मुझे इलेक्शन ड्यूटी है, तो आई फिनिश्ड ऑफ दिस क्लासेस फ्रॉम ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ये 3 दिन लेके मैंने खत्म किया, सो दैट यू आल्सो गेट सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ओके, Excuse me, ma'am. Will you please explain once again SWARM strategy? 1 मिनट, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, 1 मिनट, 1 मिनट है। हाँ, अभी पूछो। यस, Will you please explain once again SWARM strategy? स्वार्म स्ट्रेटेजी कुछ नहीं, you see, suppose now you want to understand the or identify the reading skills. ओके, तो वो रीडिंग स्किल्स के बारे में आप एक ही टेक्स्ट पढ़ने से आपको मिलेगा नहीं। सी, सो मेनी पीपल आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स। सपोज बोलते हैं रीडिंग विथ पर्टिकुलर स्पीड, वो एक रीडिंग स्किल है। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, ये एक रीडिंग स्किल है। ठीक है, रीडिंग साइलेंटली, दिस इज आल्सो रीडिंग स्किल। तो साइलेंट रीडिंग एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में आपको पहले जानना है। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग क्या है आपको समझना है। ऐसा ही इसके बारे में समझने के लिए यू नीड टू रिफर टू मोर देन 1 बुक। बहुत सारे बुक्स पढ़ना है, बहुत सारे आजकल इंटरनेट है तो वो देखो, यूट्यूब वीडियो देखो, स्लाइड शेयर देखो। उससे क्या है कि आपको कुछ ना कुछ नया नया चीज मिलता है, वो सब समेट के आपके पास रीडिंग स्किल के बारे में एक जानकारी हासिल होती है। ठीक है, वो आपका नोट्स बनती है। स्वार्म मतलब वो है, स्वार्म मतलब आइडिया क्या है, आप झाग को देखते हो ना, झाग कैसे वो पूरा बबल्स बबल्स सब मिलके एक स्वार्म जैसा होता है ना। अभी फिशेस इन सब का भी देखो, जब वो एग्स रिलीज करते हैं वो ऐसा पूरा झाग से मिलके हमको एक पूरा बंडल जैसा दिखता है। इसको इसलिए बोला कि आप एक जगह से, एक ही बुक से पूरा अपना नॉलेज नहीं डेवलप कर रहे हो, यू आर डेवलपिंग, यू आर एडिंग बबल्स एंड डेवलपिंग ए स्वार्म। इतना बड़ा आपका नॉलेज बन गया, लेकिन ये नॉलेज एक ही व्यक्ति ने नहीं बताया है, बहुत सारे लोगों का मिलके आप अपने पास एक नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो इसको स्वार्म स्ट्रेटेजी बनते हैं। दैट इज नोइंग द टॉपिक फ्रॉम इन ए डीप मैनर बाय कंसल्टिंग मोर देन 1 रेफरेंस पॉइंट्स। बहुत मल्टीपल एंगल से हम कंटेंट को इकट्ठा करके एक अपना कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, दैट इज स्वार्म। स्वार्म का मतलब ये, ठीक है। Yeah, understood. Thank you. ओके, और कुछ? ओके, और कुछ पूछना नहीं है तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए जा सकते हो। तो आपकी एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको कुछ भी चाहिए तो आप ग्रुप में डाल के हमें पूछ सकते हो इस एग्जाम रिलेटेड। ओके, आपका जो भी है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें जो डिस्कस किया इसी में से क्वेश्चंस आएगा किसी भी लेवल की। ओके, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आएगा, कुछ थोड़ा ट्विस्ट, कुछ थोड़ा एप्लीकेशन लेवल की, बिकॉज एक्सटर्नल एग्जाम है तो ये सब ज्यादा होगा ही आपके लिए। सो ऑलरेडी यू हैव टेकन 1 ऑनलाइन टेस्ट, ऐसे ही यूनिवर्सिटी लेवल टेस्ट भी थोड़ा एडवांस्ड लेवल टेस्ट है, आपको मिलेगा। ठीक है, सो प्रिपेयर वेल एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके मैम, फुल कोर्स ही है ना? हाँ, Thank you, ma'am. कोर्स आएगा, लेकिन फर्स्ट 2 यूनिट्स Okay. में हमने वो इंटरनल एग्जाम लिया तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं, क्योंकि कंटेंट वैलिडिटी होना है ना, तो पूछना पड़ेगा, तो कम क्वेश्चंस आएगा उसमें। सपोज मल्टीपल चॉइस ही है तो जो ये 3 यूनिट से फुल लेंथ आएगा। ओके, लेकिन उस यूनिट से भी थोड़ा पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार जस्ट रिवाइज करो आप, जस्ट बिफोर, बहुत दिन पहले नहीं, लेकिन बिफोर एग्जाम एक बार
रिवाइज करो कि क्या क्या है उसमें, तो इतना तो लिख सकते हो। ठीक है, इसमें तो थरो रहना है, बाकी 3 यूनिट्स में तो आपको थरो रहना है। ओके, कुछ भी नहीं पूछा है तो उसमें से हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, लेकिन फर्स्ट 2 में से कम क्वेश्चंस आएगा, बहुत कम क्वेश्चंस। ओके, अराउंड आपका 100 क्वेश्चंस है तो अराउंड 10 क्वेश्चंस मे बी फ्रॉम दोस 2 यूनिट्स। लेकिन वो अभी इसमें क्या है कि आपका एमसीक्यूज रैंडमली आता है, आपको जो आया आपके फ्रेंड को वही नहीं आएगा, क्वेश्चंस ऐसे सेट किया हुआ है प्रोग्राम। तो इसमें आपको वो 10 की 10 आए तो क्या करोगे? सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव द कंटेंट। तो एक बार रिवाइज करो, वो यूनिट्स भी रिवाइज करो, बहुत इतना पढ़ के लिखे हो एग्जाम, सो यू रिवाइज दोज कंटेंट्स, दैट्स इट। ओके, डू नॉट लीव इट। आपको बहुत कॉन्फिडेंस है आई कैन डू, लीव इट, अदरवाइज जस्ट एक बार रिवाइज करो एग्जाम की पहले, तो यू कैन आंसर। पेपर कितने मार्क्स का होगा? आपका 35 मार्क्स का होगा, 35 क्वेश्चंस आएगा, ओके। क्योंकि ये 3 क्रेडिट कोर्स है ना, तो आगे भी आपका हो गया, एग्जाम्स हो गया, तो इसके लिए आपका 35 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक, बाय। Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Bye. ma'am. Thank you, ma'am. Have a good day. Thank you, ma'am. थैंक Thank you, यू, ma'am. ओके बाय।